Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللہ کی توفیق سے آج 22ویں سیگمنٹ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ پارہ 2 کردار دکھائے گا، بیمار دل کیا ہوتا ہے اور دل میں پاکیزگی کیسے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی دلوں کا حال جانتا ہوں۔ بندے کا حال اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آج 22ویں پارے میں خطاب فرمائیں گے کہ میرے بندے تیرا دل الٹ پلٹ ہونے والا ہے، اور جب بندے کے دل میں گھبراہٹیں آنے لگیں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ حریص نہ ہو نفس کا پجاری نہ ہو، حریص نہ ہو نفس کا پجاری نہ ہو، اور قلب کے علم کا انکاری نہ ہو۔ جھلک ہو اس میں نور کی ناری نہ ہو، جھلک ہو اس میں نور کی ناری نہ ہو۔ رکھ خبر کچھ کہ پریشان امت ساری نہ ہو۔ اللہ کی توفیق سے آج 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج پارہ نمبر ہمارے پاس 22 ہے۔ الہی اس پارے کا فیض ہمارے دلوں میں اتار دے۔ سب سے پہلے ہم آیات کا کالم بنائیں گے، اور آج اس 22ویں پارے کی ریسرچ کے دوران مجھے ٹوٹل 6 آیات ملی، جن کے اندر اللہ رب العزت نے قلوب کا ذکر کیا ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آیت نمبر سورۃ الاحزاب کی 32 ہے۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 ہے۔ فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ایسا دل جو بیمار ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو روگ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 32 میں اس کا مطلب ہے دل میں روگ لگانا، امید لگانا۔ ہم پوائنٹ بنائیں گے روگ والا دل۔ آیات کو مینشن کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اب روگ والا دل، بیماری والا دل، اصل میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جب تم لوگوں سے بات کرو، اس میں اشارہ ہے مردوں کی طرف، تو تم نرم لہجہ اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو غیر مرد سے بات کرنے سے روکا نہیں ہے، البتہ ایک اصول بتا دیا ہے جو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم نرم لہجے میں بات کرو اور اگلے کے دل میں روگ آ جائے۔ روگ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے اور تم سے کوئی امید لگائے یا تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اس لیے یہ آیت عورتوں کے حق میں پروٹیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں عورت ذات کی کہ تو کسی بھی غیر مرد سے بات کرے تو لہجے میں تلخی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک پوائنٹ نکل آیا، لیکن ایسے مرد جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اللہ نے مینشن کیا ہے کہ کیوں کرتے ہیں، فی قلبہ مرض۔ لیکن جب ایسی حرکتیں جو مرد کرتے ہیں
अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मेंशन किया है कि क़ल्बिही मरज़ुन, उनके दिलों में मर्ज है। यही वो आयत मेंशन कर रही है कि जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके दिल में एक रोग है, उनके दिल में एक बीमारी लग चुकी है। तो लिहाजा ख़वातीन के लिए हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने लहजे को नरम ना करें। हम यहाँ अपने लिए अख़ज़ शुदा पॉइंट बनाएंगे, लहजा नरम ना करें। किनसे ना करें, मर्दों से ना करें, वरना फिर अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया है। और ऐसा कौन करते हैं, क्या पता अगले का दिल बीमार हो, रोग हो उसमें, और वो उसका ज़हन और दिमाग इस तरफ हो। तो लिहाजा जिनके दिलों में ऐसी बीमारी होती है फिर उन्हीं से ऐसी बातें अखज़ होती हैं, लेकिन बाहर का बंदा अगले के दिल को, हालात को जानता नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने फीमेल को हुक्म दिया है नरम लहजे में बात ना करो। आगे हमारे पास सूरतुल अहज़ाब है और आयत नंबर 51 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, दिलों के हाल, दिलों का इल्म अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। इसीलिए दिल को भी अल्लाह ताला ने अपने साथ ही रखा है। इसका इल्म, इसका कनेक्शन, इसका रिमोट अल्लाह के पास है। कोई बंदा दूसरे को नहीं जानता। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। ये आयत जो बता रही है कि अल्लाह के अलावा दिलों के हालात कोई नहीं जानता, चाहे वो मियाँ बीवी ही क्यों ना हो। इस आयत में अल्लाह के नबी और उनकी बीवियों का जिक्र है। जब नबी अपनी बीवियों के दिल का हाल नहीं जानता और अल्लाह ने फरमाया ज़ाहिरी हालात से तू वाक़िफ़ होगा, लेकिन दिलों का इल्म मेरे पास है। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, जब भी दिल की बात आई है अल्लाह ने उसको कनेक्ट अपने साथ किया है कि दिल को अल्लाह ने, कल्ब को अल्लाह ने ऐसे छुपाया है और इसकी इतनी वसी दुनिया है तो उसका अच्छा बुरा होना अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करता है। तो ये आयत हमें मेंशन कर रही है कि दिलों के हाल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आगे हमारे पास आज के पारे का तीसरा पॉइंट है सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर है 53। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिम, हम पॉइंट बनाएंगे दिलों की पाकीज़गी। दिल पाकीज़ा कैसे होते हैं, यहाँ जो पॉइंट है बड़ा हैरतफुल है। असल में नबी के घर एक दावत होती है और खाने वाले खाना खा के बैठे रहते हैं। अल्लाह ताला को इस बात से अज़ियत हुई और उसने अपने नबी के हक में ये बात उतारी कि तुम किसी ऐसी चीज़ से अपने नबी को अज़ियत ना दो। वो तुम्हारा लिहाज करता है लेकिन अल्लाह लिहाज नहीं करता। और आखिर में इस आयत ने हैरान कर दिया, ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिम, ये तुम्हारे लिए दिलों की पाकीज़गी है और उनके लिए भी। हैरत की बात यह है कि एक छोटा सा अमल कि किसी के पास फजूल बैठना और उसका वक्त ज़ाया करना, इसको अल्लाह ने दिल की पाकीज़गी कह दिया। इससे क्या होता है, आज पता चला कि किसी को बेवक्त तकलीफ देना, अजियत देना, अल्लाह ताला ने कहा ऐसा ना करो, इससे तुम्हारे दिल की पाकीज़गी जो है उसके ज़ाया होने का खदशा है। और जो ऐसा करते हैं ज़ाहिर बात है उनके दिल अभी पाकीज़ा नहीं है। अगर दिल पाकीज़ा हो तो फिर इंसान से ये हरकत कभी भी सरजद नहीं हो सकती। सूरतुल अहज़ाब की आयत में बताया कि ये वो चीज़ है जिसको हम इखलाकी तौर पे कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ से नेक्स्ट
हर सूरतन हमने जो है परहेज करना है ताकि इससे हमारा इखलाक सुधरे, दूसरे को बिला वजह तकलीफ ना हो। इससे क्या होगा, तुम्हें तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी यानी तहारत हासिल होगी। आगे हमारे पास आज के 22वें पारे का चौथा पॉइंट है, सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 60 है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन वल मुर्जिफूना फिल मदीना। ये भी जाहिर बात है सूरतुल अहज़ाब में मौजूदा के हालात पर एक हिस्ट्री दिखाई जा रही है, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि कुछ लोग गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं। और ये एक बड़ा वाक़या है। अल्लाह ताला ने असल में यहाँ पे जो मेंशन हम करेंगे, इसी आयत से हमें पता चला कि मुनाफिक दिल। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, वो नबी के बारे में गलत अफवाहें मशहूर कर रहे थे। अब यहाँ अल्लाह ने मर्द में जिक्र किया, ए नबी वो ग्रोह कौन सा है, वो यहूदी है या नसारा है या फिर कम ईमान वाले मुसलमान है या व्हाटएवर जो भी है, अल्लाह ने उनके दिल की तरफ इशारा किया है कि ये वो दिल है कि फी क़ल्बिही मरज़ुन, बीमार दिल है, और इनको आप दूसरा नाम दे सकते हैं, बीमार दिल वाले। असल में ये तोहमतें लगाने वाले थे, किसके ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बात मशहूर कर देना और आपके ऊपर तोहमत लगा देना। यही वो काम है जो आज नबी पाक की उम्मत के लोग भी करते हैं। तो अल्लाह ने मेंशन किया है कि जो गलत अफवाहें उड़ाते हैं और गलत बात मशहूर करते हैं और तोहमतें लगाते हैं, असल में उनके दिल के अंदर मुनाफिक होता है। और ऐसे दिल, ऐसे इंसानों के जो दिल हैं वो दिल बीमार होते हैं। आज अल्लाह ताला 22वें पारे में हमें कुछ दुनिया के किरदार की तरफ इशारा कर रहा है। मुनाफिक दिल किसकी होती है, उसका ज़ाहिरी अमल कौन सा होता है, बीमार दिल किसका होता है, उसका ज़ाहिरी अमल क्या होता है। फिर अल्लाह ताला ने कहा दिलों की पाकीज़गी हासिल करनी है तो उसके लिए फिर आप क्या करें। आगे हमारे पास आज 5वां पॉइंट है 22वें पारे का, सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 66 है, यौमा तक़ल्लुबु वुजूहुहुम फिन्नार। यहाँ पे अल्लाह ने जहन्नुम का जिक्र किया है कि उनके उस दिन वो जहन्नुम में उलटे पुलटे जाएंगे। तक़ल्लुबु का मतलब है उलटना पलटना, और यही मतलब है दिल का। असल में क्या कहूँ उस रब की शान के जिसका अंदाज ही बड़ा अनोखा है। अल्लाह करे रमज़ानुल मुबारक के माह में ये अंदाज आपको पसंद आ जाए और समझ आ जाए। यहाँ अल्लाह बंदे बताता कि भाई मुनाफिक जाएंगे जहन्नुम में, गुनाहगार जाएंगे, काफिर जाएंगे, मुशरिक जाएंगे। अल्लाह ने तो मेंशन ही दिल कर दिया है, यौमा तक़ल्लुबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिनके दिल जो होंगे जिस तरह जहन्नुम में उल्टे पुलटे जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह ने तक़ल्लुब लगाया, दिल काफ लाम्बा। तो गोया यहाँ से हमें ये पता चला कि जन्नत और जहन्नुम का फैसला भी अल्लाह दिलों को देख के करेगा, ना कि इंसान के जाहिर को। यहाँ हम एक पॉइंट लिखेंगे, जन्नत जहन्नुम का फैसला दिलों की बेस पे होगा, यानी जन्नत जहन्नुम का फैसला दिलों की बेस पे होगा। दिलों पर होगा। क्या कहें उस रब के, उस दिलों में हमारी नमाजें, इबादतें, रोजे, अगर इनका कनेक्शन दिल के साथ हुआ तो ठीक है, वरना फवैलुल लिल मुसल्लीन, गुमराही है, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए भी। तो आपने क्या करना है, आज से हर इबादत, हर इखलाकी अमल का कनेक्शन अपने दिल से देखें। अल्लाह ने जरा जरा हिसाब नहीं करना बंदे का, सिर्फ दिल चेक करना है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, है बंदे क्या तू कल्बे सलीम लाया है? अगर उसका कल्बे सलीम हुआ
उसी की बेस के फिर उसका फैसला किया जाएगा। यहाँ पे सूरत मुकम्मल हुई, नई सूरत शुरू होती है। सूरत का नाम सूरत सबा है और इसकी आयत नंबर 23 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन कुलूबिकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनके दिल से घबराहट दूर कर दी। इज़ा फुज़्ज़िया अन कुलूबिकुम, हम यहाँ मेंशन करेंगे, हमारे आज के सेगमेंट का लास्ट पॉइंट है घबराहट वाले दिल। जब भी दिल की बात आएगी, मैं फिर बार बार कहती हूँ, अल्लाह उसको अपनी तरफ ले लेते हैं। ये नहीं कहते कि फला अमल की वजह से हो गया, फला ऐसे हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम, कि जब अल्लाह घबराहट दूर कर देता है फिर उनसे पूछा जाता है तुम्हारे रब ने क्या कहा, तो वो कहते हैं हक फरमाया। अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया, यहाँ तक कि मैंने उनकी घबराहट दूर कर दी। अल्लाह ताला अपनी तरफ ले रहे हैं, मैंने घबराहट दूर कर दी, क्योंकि घबराहट बाहर की होती तो अल्लाह बंदे से कनेक्शन करता, घबराहट अंदर की है तो इसलिए अल्लाह ने उसको अपनी तरफ मेंशन कर लिया। घबराहट वाले दिन घबराहट अल्लाह दूर करेगा, कोई बंदा मजाल क्या उसकी वो दूर कर सके, क्योंकि इसका और इसलिए अल्लाह ताला ने किसी को हक ही नहीं दिया कि घबराहट अल्लाह के अलावा कोई और दूर करे। मामला दिल का जब भी हो तो उसको अल्लाह अपनी तरफ ले आते हैं, घबराहट अल्लाह दूर करता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब हम इसको मेंशन करने के बाद आज के पारे का जायजा लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अहज़ाब में रोग वाला दिल, अल्लाह ताला ने कहा औरतों लहजे नरम ना करना, हो सकता है किसी दिल में बीमारी हो। औरत के लहजे से अगर बंदे के दिल में कोई बीमारी आ रही है, वो वक्ती नहीं आई, ऐसा दिल रोगी दिल है। फिर अल्लाह ने कहा दिलों की हाल अल्लाह जानता है। आज का ये जो पॉइंट है ये पूरे पारे को प्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है दिल अल्लाह के हैं और है हमारे पास, लेकिन इसका कनेक्शन अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह ने कहा दिलों की पाकीज़गी, किसी को बिला वजह तकलीफ ना दो, इससे तुम्हारे दिल की पाकीज़गी जाती रहेगी। फिर अल्लाह ने कहा मुनाफिक दिल और बीमार दिल, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, बिला तहकीक किसी के बारे में बात करते हैं, उनके दिल मुनाफिक होते हैं और बीमार होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत जहन्नम का फैसला भी बंदो तुम्हारे दिलों पर होगा। घबराहट वाले दिल अल्लाह ही दूर करता है। बात यह है कि आज इस सारे नक्शे के अंदर जो मुझे समझ आई तो ये है कि पहले तो अल्लाह ने चंद किरदार दिखाए। इल्जाम लगाने वाले का दिल खराब होता है, किसी औरतों की तरफ किसी बंदे गैर मर्द का माइल होना निशानी है, उसका दिल खराब है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया जो अखलाकी किरदार है कि किसी के बिला वजह बगैर किसी काम के घर बैठे रहना, किसी को अजियत देना, इसका मतलब है उसका दिल खराब है। और हैरत हुई है मुझे ये पॉइंट देखकर कि अगर हमारा बाहर का किरदार खराब है तो इसका मतलब है हमारा दिल खराब है। यही आज के इस पारे में मुझे समझाया कि इंसान का इखलाक खराब है तो समझ जाओ इसका दिल खराब है। इखलाक ना दरसों से ठीक होना है, इखलाक न किताबों से ठीक होना है, इखलाक ठीक होना है तो इस दिल को सही करे। और कल्ब को सही करने के लिए आपको कल्ब का इल्म पढ़ना पड़ेगा। और यही है हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन का मकसद, कुलूबुल कुरान फी ज़ावियतुल कुरान का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कबूल कर ले और इसके बदले अल्लाह हमारे इखलाक को दुरुस्त कर दे और इखलाक के लिए अल्लाह हमारे कलूब की तकहीर कर दे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू रब दा कुरान पढ़ी जा, तू पढ़ के दिल ती उतारी जा। तू रब दा कुरान पढ़ी जा,
तू पढ़ के दिल ते उतारी जा, इनू वारी वारी पढ़ी जा, इनू वारी वारी पढ़ी जा, नहीं